50 سال کے بعد 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, ملک میں پیسہ آتا ہے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7 سے 10 لاکھ روپے تک؟ 30 سال میں 2 حکمران خاندانوں نے ملک کو معاشی طور پر ناکارہ بنایا. پسماندہ علاقوں کی حالت بدل دیں گے. عام آدمی کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. 13 کروڑ افراد کو احساس راشن پروگرام کے تحت سبسڈی دیں گے. آنے والی نسلوں کی سوچ رہے ہیں. تنقید کرنے والے 5 سال بعد ہماری کارکردگی پر بات کریں. وزیر اعظم عمران خان کا اٹک میں 200 بستر پر مشتمل جدید زچہ بچہ ہسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب. اقتدار میں آئے تو 20 ارب ڈالر خسارہ ورثے میں ملا. پہلے ہی سال خسارہ کم کر کے 1 ارب ڈالر پر لائے. ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے. کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ماضی کی کسی بھی حکومت نے غریب کا نہیں سوچا. حکومت مہنگائی پر قابو پانے اور عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے 450 ارب کا خسارہ برداشت کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے اٹک میں پی ٹی آئی قیادت سے گفتگو. دنیا بھر میں آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں سوچ بدلنا ہوگی. پاکستان میں قابلیت کی کمی نہیں. تعلیمی ادارے مارکیٹ کے ساتھ شراکت داری کر کے ہنرمند افرادی قوت بڑھائیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پشاور کی تقریب سے خطاب. سابقہ دور کی بدترین پالیسیوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. حکومت نے چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو مقرر کی. چینی کی قیمتوں میں اضافہ سٹے بازی سے ہو رہا ہے. شوگر ملز پر سندھ میں زرداری اور پنجاب میں شریف خاندان کی اجارہ داری ہے. سندھ میں 1 نومبر سے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کی جا رہی ہے. پنجاب میں 15 دن کے اندر کرشنگ شروع ہو جائے گی. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین. مؤثر زرعی پالیسی کے نتیجے میں 3 بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. رواں سال گندم کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہیں. کھادوں پر 15 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں وفاقی وزیر سید فخر امام. بلوچستان گزشتہ ادوار میں محرومی کا شکار رہا. پسماندہ علاقوں کی ترقی وزیر اعظم کا ویژن ہے. وفاق کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. ریلیف پیکج کے ثمرات سے بلوچستان کے عوام بھی مستفید ہوں گے. وفاقی وزیر اسد عمر کی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے ہمراہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو. عالمی سطح پر کورونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ. عالمی ادارہ صحت نے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. متاثرین کی تعداد میں 55% تک کا اضافہ. فروری تک 5 لاکھ مزید اموات ہو سکتی ہیں. WHO. پاکستان میں مؤثر حکومتی پالیسیوں اور ویکسینیشن سے کورونا کیسز میں نمایاں کمی. مثبت کیسز کی شرح 1% رہ گئی. جرمنی کا افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے 60 کروڑ یوروز کی اضافی امداد کا اعلان. ضرورت مند خاندانوں میں خوراک اور امدادی اشیاء تقسیم کی جائیں گی. جرمنی کا ایران اور پاکستان میں بے گھر افغان شہریوں کی امداد جاری رکھنے کا بھی اعلان. کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے. ریاستی عوام حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کا مشن جاری رکھیں گے. مضموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنانے کا عزم. حریت رہنماؤں کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت. کراچی شپ یارڈ میں مہلک ہتھیاروں اور جدید آلات سے لیس چوتھے ملزم کلاس جہاز کی تعمیر کا آغاز. مقامی سطح پر جدید اسلحے سے لیس جنگی جہازوں کی تیاری قابل فخر ہے. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی. T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی تیسری کامیابی. شارجہ میں نمیبیا کو 52 رن سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی. نمیبیا کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر. 163 رنز کے جواب میں نمیبیا کی ٹیم 7 وکٹوں پر 111 رنز بنا سکی.
Got to be careful there. But, this is really hurting in terms of the runs that are being added here. और दुबई में मेगा इवेंट का 37वां मैच, स्कॉटलैंड का भारत को 86 रन का हदफ। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्कॉटलैंड की टीम पहले ही 3 मैचेस हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। That is going for 6. Let me tell you, there's a beautiful Yorker. Oh, shout. And it's going to be one. का चैंपियन। Smashes in. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो देने के बजाय आइंदा नस्ल के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद अवाम इस बात का तयन कर सकेंगे कि कौम के शानदार मुस्तकबिल के लिए मौजूदा हुकूमत ने दूररस इक़दामात किए। तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। अटक में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पीछे रह जाने वाले इलाकों की तरक्की और पसमानदा तबके की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम आइंदा इंतखाबात की बजाय आने वाली नस्लों के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए दूररस इक़दामात कर रहे हैं। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। जिस तरह 50 साल के बाद 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, मुल्क में पैसा आता है तो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। कभी किसी ने सोचा था पाकिस्तान में हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी 7 से 10 लाख रुपए तक? जो पाकिस्तान का कमजोर गरीब तबका, उनको मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान की तरक्की में शरीक होने का। मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल के बाद ये जो कमज़ोर तबके और कमज़ोर इलाके हैं, अगर ये खुशहाल हो जाएं, अगर इनकी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि हम कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुल्क की 13 करोड़ की आबादी को एहसास प्रोग्राम के जरिए आटे, घी और दाल की मद में 30% सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले माफियाज के खिलाफ जहाद जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा के बाइस दुनिया को कसाद बाजारी का सामना है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत माशी चैलेंजेस के अलावा आलमी सतह पर एशाए ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसका असर पाकिस्तान को भी पहुँच रहा है। हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि अपने लोगों को हम इस महंगाई से बचाएं। पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। पता चला 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी, इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी। जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मिल के कीमतें ऊपर की थी, कार्टलाइजेशन की थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। ये जुल्म है हमारी आवाम से कि ये शुगर माफिया मिल के अरबों रुपया कमा लेता है आवाम की कमर तोड़ के।
तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के तमाम इलाकों की यकसां तरक्की हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दायरा कार में लाने के लिए 31 दिसंबर से हेल्थ कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू हो रहा है, जिसके लिए 322 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब के 8 अजला में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड के इजरा से अवाम को मुफ्त इलाज मुआलजे की म्यारी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने अटक पहुँचने पर 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम को बताया गया कि 75 कनाल अराजी पर तामीर किए जाने वाले इस अस्पताल के लिए 5 अरब 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे 2 से 3 लाख खवातीन को सालाना इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना वजीर आजम इमरान खान के विजन का महवर है, जिसमें अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की म्यारी सहूलियात की फ्राहमी तरजीहात में शामिल है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अटक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में आए तो मुल्क का मजमूई खसारा 20 अरब डॉलर था। मौजूदा हुकूमत मेहनत करके पहले ही साल खसारा 1 अरब डॉलर पर ले आई। ज़िला अटक की PTI क़यादत से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा इन्हिसार दरामदात पर होने की वजह से जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी इसके असरात होते हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और गरीब आवाम पर बोझ कम करने के लिए इस वक्त 450 अरब का खसारा खुद बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कामयाब पॉलिसियों की बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई की गई। एहसास सब्सिडी प्रोग्राम, वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुस्तहिक घरानों को आटा, दालों और घी पर 30% सब्सिडी फराहम होगी, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 20 लाख घरानों के लिए सूद के बगैर कर्जे फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने मकामी क़यादत पर जोर दिया कि वो मुतहरिक होकर गरीब और मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम पर तवज्जो मरकूज़ करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि साइबर डिफेंस पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान के तालीमी इदारे मार्केट के साथ शराकतदारी करके अफरादी क़ुव्वत तैयार करें। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर में मसनूई ज़हानत और साइबर डिफेंस लैब के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में काबिलियत और ज़हानत की कोई कमी नहीं है। तफसील से आगाह करेंगे कश्मीर खान आफरीदी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में IT के शोबे में तेजी से तरक्की हो रही है। हालिया बरसों में IT के शोबे में तरक्की ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर हमने दुनिया के साथ चलना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अब वर्चुअल कंपोनेंट बढ़ाएं। दुनिया वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जा रही है। सारी नॉलेज इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है, सिर्फ आपने उसको प्रोग्राम करना है कि समझ आ जाए, जिस लेवल को आप एड्रेस कर रहे हैं उसकी समझ में आ जाए। रीपैकेजिंग ऑफ नॉलेज इज द साइंस टुडे आल्सो। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुस्तकबिल में इंसानी जिंदगी का इन्हिसार IT पर मजीद बढ़ेगा। मुस्तकबिल के ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम तालीमी और तहकीकी इदारों को वक्त की रफ्तार के साथ बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि तरक्की की मंजिल का तयन ज़हनों की बुनियाद पर होता है। अब जमाना इस बात का नहीं रहा कि मेमोरी पर इदारे चलें। एनालिटिकल एबिलिटी इज द इशू, कि जो डेटा है उसको एनालाइज कर सके, मंतिक का इस्तेमाल कर सके। एक हाथ से मसल से, यहाँ के मसल से इनपुट लिया और बायोनिक आर्म के अंदर इस बात का इम्कान हो गया, तो कल को इस बात का इम्कान है कि यही इंटरफेस बिटवीन मैन एंड मशीन मसल से आगे चलकर जहन के साथ भी हो। सदर मुमलिकत ने कहा कि ऑनलाइन तालीम सस्ता और आसान जरिया है। हमें इस सिलसिले में मजीद आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों में 12 तहकीकाती मराकज़ काम कर रहे हैं। इससे कबल सदर मुमलिकत ने यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत और साइबर डिफेंस लैब का इफ्तिताह किया। कश्मीर खान आफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि डॉक्टर्स अपने पेशा वराना जिम्मेदारियों के दौरान इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार खिदमत का मुजाहरा करें।
खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में नए एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तलबा ने मुल्क भर में अपनी सलाहियतों को मनवाया है। सदर मुमलिकत ने टेली एजुकेशन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि टेली एजुकेशन को माजी में नज़रअंदाज किया गया, लेकिन कोरोना वबा के दौरान इसकी अहमियत मज़ीद उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि तालीम और इल्म का वसी ज़ख़ीरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। टेली मेडिसिन से मशवरे और इलाज की सहूलियात ज़्यादा आबादी तक पहुँचाई जा सकती हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड के अहसन इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर आएँ। इससे कबल सदर मुमलिकत ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि साबिका अदवार की बदतरीन पॉलिसियों ने मुल्की मईशत को तबाह किया। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर के शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि ज़रई अजनास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की मौसर ज़रई पॉलिसी का नतीजा है। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि साबिका हुकूमतों की पॉलिसियों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वजह से सिंध का बुरा हाल है। ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। चीनी सिंध में सबसे ज़्यादा महंगी है। सिंध हुकूमत अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे कि आखिर उन्होंने पहले गंदम रिलीज़ नहीं की और अब वो वहाँ पर जो चीनी की क्रशिंग है वो शुरू नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के पास ही तकरीबन 1,30,000 टन जो शुगर है वो मौजूद है। 22 दिनों के लिए ये चीनी काफ़ी है जो हमारे पास है। 3 साल में आपने जो इतने बड़े करतूत हैं इनके वो सही नहीं हो सकते। वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि रवां साल 3 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। उन्होंने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 1,950 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। वफाकी वजीर का कहना था कि खादों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गंदम की पैदावार इस साल 27.5 मिलियन टन हुई। आज भी हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 5 मिलियन टन के करीब हैं और हमने कुछ गंदम इस साल इंपोर्ट भी किया। बाकी हमारा धान जो है राइस उसकी भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। शुगर केन में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन थी पिछले साल 81 लाख टन, वो बढ़कर अब 87 लाख टन हम समझते हैं होगी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि चंद अफराद इस मुल्क में होर्डिंग करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आम शहरी को पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि आलमी मंडी में बहरानी कैफियत की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने टैक्सों को इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पर रखा हुआ है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें जमहूरियत का दर्स देने वाले पहले खुद जमहूरी रिवायात को पूरा करें। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन में रहते हुए जिस तरह सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं वो काबिल सत्ताइश है। तफसील कराची से नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी असम्बली में PTI की हुकूमत ने अपोजिशन को तमाम कमेटियों में नुमाइंदगी दी है, ताहम सिंध असम्बली में अपोजिशन को कमेटियों में नुमाइंदगी ना देना जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। हमें आए दिन जमहूरियत का दर्स देते हैं तो ये उन पर लाजिम है कि कायदा पढ़ाने से पहले कायदा पढ़े भी सही और इस पर अमल दरामद करें। सिंध के कायदे ऐवान से मुतालबा कर रहा हूँ, जमहूरी आईनी रिवायात और कदरों को और पार्लिमानी रिवायात को सामने रखते हुए स्टैंडिंग कमेटीज में हिस्ब इख्तलाफ को नुमाइंदगी दें और पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल चाहते हैं। चाहे हैदराबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे और अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध हो, वहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो पीपल्स पार्टी से नजरियाती या ज़हनी मुताबिकत नहीं रखता। वजीर खारजा ने कहा कि सिंध में अपोजिशन के साथ जो सलूक हो रहा है वो काबिल मुजम्मत है।
بعد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سندھ اسمبلی کا دورہ کیا۔ اس سے قبل سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB، بینک فار لائف۔ میری بیڈ شیٹ، میرے کپڑے، میری کراکری اور میرے گھر کا سامان کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ، وہ بھی 11/11 پہ، 11 نومبر سے۔ تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں۔ دراز 11/11، بڑی سیل کی بڑی بچت۔ بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ بلوچستان گزشتہ ادوار میں حقوق سے محروم رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ترجیحی بنیادوں پر پسماندہ علاقوں کی ترقی ہے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں، کوشش ہے کہ پیٹرول پر ٹیکس کم سے کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بلوچستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو نے صوبے کی ترقی میں وفاق کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر وفاق معاونت نہیں کرے گا تو بلوچستان میں ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کی زیر صدارت بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کوئٹہ میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاق کی وزیر زبیدہ جلال سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسد عمر نے ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر سے صوبے کے لوگوں کو نقل و حرکت میں آسانی کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس کو منڈیوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ اور دفاعی اتاشی میجر جنرل یونگ یانگ نے GHQ میں ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے علاقائی استحکام اور پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دفاعی اتاشی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ معزز مہمانوں نے سی پیک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے اور علاقائی استحکام کی کوششوں کے لیے کیے گئے خصوصی اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے جرمنی نے 60 کروڑ یوروز اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں موجودہ صورتحال بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خشک سالی، غذائی قلت اور بے روزگاری ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ جرمن امداد ادارہ برائے مہاجرین کے توسط سے ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جرمنی نے ایران اور پاکستان میں بے گھر افغان شہریوں کی امداد جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے کابل میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبہ وردگ، ہرات، ننگرہار، کنچر اور کابل کے چیدہ سیاسی اور مذہبی رہنما شامل تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، علاقائی استحکام اور سیکیورٹی کے انتظامات پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر گلبدین حکمت یار نے تمام سیاسی رہنماؤں کو اپنی صفوں کو منظم اور فعال رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل صورتحال میں ہمیں اپنے لوگوں کی امداد اور تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو جنرل سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ ہمیں افغان جنگ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں نیٹو افواج کی 20 سالہ موجودگی کو وقت کا ضیاع نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بیان میں نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ افغان جنگ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ مستقبل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ تجربہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے القاعدہ کو شکست دی اور گزشتہ 20 برسوں میں دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے باوجود ہمیں صورتحال کو سنبھالنا ہوگا، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ سٹولٹنبرگ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دی ہے۔
कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के मुलजिम रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस गोहराम और दूसरे मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। तफसील से आगाह करेंगे ज़िशान अहमद खान। 2 रोज कबल कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में नौजवान नाजिम जोखियों को इलाके के बाअसर वडेरे और असर रसूख रखने वालों ने बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया। मकतूल नाजिम जोखियों का सिर्फ ये जुर्म था कि इसने रुकन सिंध असेंबली जाम ओवैस के मेहमानों को शिकार से रोकने की कोशिश की और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। बाद में मकतूल नाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश मलीर मेमनगोट से मिली। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख की मुदाखलत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा राजा अजहर ने मलीर मेमनगोट थाने में वर्सा के हमरा कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। कत्ल और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के अहल खाना और अहल मोहल्ला ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया और कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सख्त अवामी दबाव देखने में आया, जिसके बाद गुज़िश्ता रात मुलजिम जाम अवैस गोहराम ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। जाम अवैस गोहराम और दीगर 2 गिरफ्तार मुलजिमान हैदर और मीर अली को मलीर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुक्काम ने कत्ल के मामले पर 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी है। इंतहाई तशद्दुद किया, मेरे भाई को कत्ल कर दिया उसने। वो MP है मुंतखब PS 79 साकरो ठट्टा से, पीपल्स पार्टी का है। मुझे आप सबसे ये अपील करनी है कि जाम गोहराम ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ज्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ताज़ियत के लिए मकतूल के इलाके मलीर के आचार सालार गाँव गए। उन्होंने मकतूल के वर्सा को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के दीगर रहनुमाओं के हमरा जाबहक नाजिम जोखियों के घर गए और उनके वर्सा से ताज़ियत की। इस मौके पर हलीम आदिल शेख का कहना था कि मकतूल नाजिम जोखियों ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों के साथ जुल्म होगा और वर्सा को जरूरत होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अंदरूनी सिंध से सोशल मीडिया पर वाक़यात जिस तवातुर से आ रहे हैं, लगता है कि सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा, सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो और अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रौंदें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कराची में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत सूबे के अवाम पर इजाफी महंगाई का बोझ डालकर विफाक पर इल्ज़ाम लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब अवाम की बहबूद के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फलाही पैकेज दिया है। तफसील समीर अब्बास से। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जानबूझकर बरवक्त मिल्स को गंदम रिलीज नहीं की, जिसकी वजह से आटा सूबे में महंगा बेचा जा रहा है। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत बार बार ये रिमाइंडर देती रही है, आपके पास 12 लाख टन गंदम जो है वो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है, उसको आप रिलीज करें। वफाकी हुकूमत की बात को, उनकी एडवाइस को तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह से सिंध में और कराची में खास तौर के ऊपर आज भी इतना डिफरेंस जो है वो आपको आटे की कीमत में नजर आ रहा है। साईं सरकार लंबी तान के सोए हुए हैं, माफियाज के रहमो करम पर, ग्राम फरोशों के रहमो करम के ऊपर जो है वो सिंध की आवाम को जो है वो इन्होंने छोड़ा हुआ है। फारूक हबीब ने कहा कि माली वसाइल की कमी के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। हमने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया नहीं, बल्कि उसको हमने कम किया। हमने सेल टैक्स को, पहले हम 6.8% सेल टैक्स ले रहे थे, कल रात जो है हमने सेल टैक्स को कम किया। सेल टैक्स को कम करके हम 1.4% के ऊपर जो है वो सेल टैक्स को ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक को महंगाई का जिम्मेदार ठहराकर अपनी सियासत चमका रही है। एक सवाल के जवाब में गवर्नर ने कहा कि ग्रीन लाइन बस सर्विस के ड्राइवर्स की तरबियत जारी है। बहुत जल्द इस मंसूबे के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान किया जाएगा। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
यूरोप में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद एक बार फिर बढ़ रही है। आलमी इदारा सेहत ने फरवरी तक 5 लाख हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। ताहम मुअस्सर हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 1.1% रह गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि यूरोप में कोरोना से मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र फरवरी तक 5 लाख मजीद अमवात हो सकती हैं। उन्होंने इस सूरत हाल की जिम्मेदारी वैक्सीन न लगवाने को करार दिया। उन्होंने बताया कि स्पेन में 80% लोगों को दोबारा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, मगर फ्रांस और जर्मनी में ये तादाद बिल तरतीब 68 और 66% रही। यूरोप में कोरोना की वबा एक बार फिर शुरू होने के बावजूद पाकिस्तान में इस मौलिक वबा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 44,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 मुस्बत रिपोर्ट हुए, जबकि 11 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। गुज़श्ता रोज 13 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ज़िले इंतज़ामिया ने लाहौर शहर में डेंगू क्रैश प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जो 15 रोज़ तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में 600 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 1200 डेंगू वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो शहर के 37 यूनियन काउंसिल्स में डेंगू से बचाव के इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। पहले रोज़ 11,262 घरों की सर्विलेंस की गई और 1,325 आउटडोर मकामात को चेक किया गया, जबकि 3,190 मकामात पर स्प्रे करवाया गया। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 2,977 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 1,943 सरकारी अस्पतालों में जबकि 1,034 निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। शहर में 1,443 मजीद बिस्तर डेंगू के मुमकिना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। खित्ते के 11 अजला के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 51 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची समेत सूबा सिंध में भी डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला शर्की में 189 जबकि जिला वस्ती में 169 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 183 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में अब तक मरीजों की तादाद 7,843 है। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। इजलास में वजीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम ने 8 नवंबर को कौमी असम्बली का हॉल पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की ब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक पेश की, जो मंजूर कर ली गई। नुक्ता एतराज़ पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। उन्होंने कहा कि मुंतखब ऐवान को इस महंगाई का नोटिस लेकर कोई ऐसी जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। ख्वाजा आसिफ ने यह भी मुतालबा किया कि कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले मुआहदे की तफसीलात ऐवान में पेश की जाएं। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम आदमी को तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया है। इस पैकेज के तहत 120 अरब रुपए रखे गए हैं, जिससे कम आमदन वाले अफराद मुस्तफीद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बायस किया गया। इजलास चेयरमैन सादिक खान सिंजानी की सदारत में हुआ। कायदे ऐवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्जे दे रही है। अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर बराह रास्त अवाम पर पड़ता है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात करे। वक्फा सवालात में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि डीजी एविएशन को डेपुटेशन पर सिविल एविएशन अथॉरिटी में लाया गया। कोरम की निशानदही पर सेनेट इजलास सोमवार शाम 4:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत।
नाज़रीन, कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शहदाए जम्मू इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएंगे कि वो अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो कल यौम स्याह के तौर पर मनाएं और 1947 में डोगरा फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले जम्मू के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकारीब का एहतमाम करें। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लोगों से शाम 7 बजे से 7:30 तक ब्लैकआउट करने की भी अपील की। उन्होंने जम्मू के लाखों मुसलमानों के कत्लेआम को इंसानी तारीख का सबसे खूनी होलोकास्ट करार दिया। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने शोहदाए जम्मू को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और उनके मिशन को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोर्स के चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने मकबूजा वादी में जारी एक बयान में अफसोस का इजहार किया और कहा कि भारत अपने गैर कानूनी कब्जे को तूल देने और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में मजीद फौजी तैनात कर रहा है। काबिज इंतजामिया ने आज एक मरतबा फिर लोगों को श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने एक बयान में इंतजामिया के इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुसलमानों के दीनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया। भारतीय फौजियों ने आज श्रीनगर के इलाके बमना में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके एक शहरी को जख्मी कर दिया। फौजियों ने बमना के मेडिकल कॉलेज की तलाशी भी ली। जिला कश्तवाड़ में भारतीय पुलिस का एक एहलकार अपनी सर्विस राइफल से गोली चलने से हलाक हो गया। और नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए आपको मजीद आगाह करें। कश्मीर से मुतालिक ही एक और खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ले जाते हुए लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया था। जम्मू कश्मीर के शोहदा को खिराज अकीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को यौम शोहदाए जम्मू के तौर पर मनाया जाता है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद। 1947 में जब तकसीम बर्रे सगीर का ऐलान हुआ तो कश्मीर में अकलियतों को ये फिक्र दामनगीर हुई कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा उन्होंने हिंदू महासभा और जिन सिंह के लीडरों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए 6 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ले जाने के बहाने जम्मू के 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्लेआम का बुनियादी मकसद जम्मू में मुस्लिम आबादी की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में बदलना था। और 47 के बाद अगर आप जम्मू में जो मर्दमशुमारी हुई उसके नताइज देखें तो मुसलमानों की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में बदल दिया गया। पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने अपने सरों की फसलें कटवा कर कफन का लिबास ज़ेबत कर दिया। कश्मीरी अवाम हर साल 6 नवंबर का दिन यौम शोहदाए जम्मू के तौर पर मनाते हैं। इस दिन की मुनासबत से रियासत गिर जलसे जुलूसों, एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुंतखब जमहूरी हुकूमत का हाथ हमेशा अवाम की नब्ज पर होता है। बलूचिस्तान के ट्रेडर्स वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के हवाले से क्या राय रखते हैं, बता रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल इस वक्त अवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तनकीद, ऑपोजिशन और मीडिया का बुनियादी हक है, लेकिन कोविड-19 के बाद आने वाले इकोनॉमिक डिप्रेशन ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी मईशतों को भी बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया है। बलूचिस्तान के ट्रेडर्स भी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज को तारीखी करार देते हैं। पैकेज से न सिर्फ आम आदमी को रिलीफ मिलेगा बल्कि मईशत और कारोबार में भी तेजी आएगी। बहुत खुशाइंद इकदाम है और जो खान साहब ने वादा किया इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा। ट्रेडर्स का कहना है कि कोविड-19 के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। हर रोज महंगाई का मुकाबला करते आम आदमी को वज़ीर आज़म पैकेज से फौरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन मुल्की मईशत को दबाव से निकालने के लिए मजीद लॉन्ग टर्म प्लान्स लाने होंगे। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा और वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबे में मौजूद वफाकी इदारों का जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिटीज़न पोर्टल कायम करके अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इदारों के सरबराहान तक रसाई को यकीनी बनाया है, जो कि एक अच्छी काविश है। गवर्नर बलूचिस्तान ने हिदायत की कि सिटीज़न पोर्टल पर अवामी शिकायत का असाला करने और अवामी मुश्किलात का बर वक्त हल तलाश करने का जायज़ा लेने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ।
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि सिटीजन पोर्टल के जरिए मौसूल होने वाली शिकायतें और शिकायतों के अजाले पर हमारी भी कड़ी नज़र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल के माबैन कोयटा में होने वाली मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए फ़ंड्स की बरवक्त इजरा और मनसूबों की मॉनिटरिंग के मौसर मैकेनिज़्म के क़याम पर इत्तफाक किया गया। गवादर में पानी और दीगर मसाइल के हवाले से असद उमर का कहना था कि वफाकी हुकूमत को एहसास है कि जब तक गवादर के मकामी लोगों के मसाइल को हल नहीं किया जाएगा इलाका तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने प्लानिंग कमीशन और NHA में बलूचिस्तान के मेंबर की तैनाती का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें बलूचिस्तान पर हैं। अगर बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर ना किया गया तो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मनफी प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी और आटे की कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि 10,000 मैट्रिक टन दरामदी चीनी की पहली खेप कल तक खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएगी और आइंदा चंद रोज में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए से कम होकर 90 रुपए हो जाएगी। वज़ीर आला ने सूबे भर के ज़िले इंतजामिया को चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत की। इजलास में आटे की कीमतों का भी जायजा लिया गया और बताया गया कि सूबे में सरकारी आटा 1100 रुपए फी 20 किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। पंजाब में चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सूबे भर में हुकूमत मुतहरिक हो गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान, शेखुपुरा, मंजनाबाद, हासिलपुर, खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिलें सील, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद कर ली गई है। लाहौर में 100 थैले, सरगोदा में 480 थैले, साहिवाल में 960 थैले, रहीम यार खान में 6,757 मैट्रिक टन चीनी सरकारी तहवील में ली गई। शेखुपुरा में चीनी ज़ख़ीरा करने और महंगे दामों फरोख्त करने पर 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 दुकानें और 1 गोदाम को भी सील किया गया। बड़ी कार्रवाई मंजनाबाद में इंतजामिया ने की, जहां गवर्नमेंट सब्सिडी के 4,000 चीनी के थैलों समेत 9,000 थैले बरामद हुए, जिसकी मालियत 3 करोड़ 55 लाख थी। हासिलपुर में 7 ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार करके गोदामों को सील कर दिया गया। खानेवाल, कबीरवाला और जहानिया में दर्जनों दुकानदारों को जायद कीमत पर चीनी कम फरोख्त करने के जुर्म में जुर्माने किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अटक में सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि माजी में अटक को तरक्याती कामों के हवाले से नज़रअंदाज किया गया। हमने शहर में तालीम, सेहत और दीगर शोबों की तरक्की के लिए रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर काजी अहमद अकबर के वालिद काजी खालिद महमूद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। मुशीर खजाना शौकत तरीन से इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने वर्चुअल मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुशीर खजाना को रवा माली साल के दौरान अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की तकमील के हवाले से रुकावटों और नज़्म व नस्क को यकीनी बनाने के हवाले से आगाह किया। मुशीर खजाना ने वज़ीर आला की सिफारिश पर 4,000 आसामियों की फौरी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि नई आसामियों की तख्लीक एहसन इक़दाम है, महकमों की कारकर्दगी में इससे बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से जनूबी एशिया ताल्लुकात के बारे में यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के वफ़द ने मुलाकात की। फरीकैन ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए तामीरी शराकत दारी की बुनियाद पर मुश्तरका काविशें जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द ने अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। गवर्नर ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया और कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को GSP+ स्टेटस में तोसी के लिए ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। वो इस्लामाबाद में नेशनल डिजिटल हेल्थ फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे अनीसावा। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि लोगों को सेहत की खिदमात में बेहतरी के लिए तिब के शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। वो तमाम इदारे जिनका ताल्लुक हेल्थ केयर डिलीवरी से है, चाहे प्राइमरी केयर है या टर्शरी केयर है,
اس میں کوالٹی، ڈاکیومنٹیشن، سیونگ آف ٹائم اینڈ منی، ایفیشنسیز، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہتر ہوتی ہیں جب آپ ڈیجیٹل سسٹمز کو یوز کیجیے. اس کو ہم فردر آگے لے جا کے اپنے پولیو پروگرام اور جو ہمارا ویکسینیشن کا پروگرام ہے، EPI کا پروگرام، اور دیگر انٹرونشنز جو ہیں اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم اور ٹیلی میڈیسن سے دور دراز علاقوں میں لوگوں کے صحت کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں نمائندے اور دوسرے مقررین نے صحت کی خدمات تک رسائی میں بہتری کے لیے یونیورسل ہیلتھ کیئر کے نظام کی اہمیت پر زور دیا. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بیگم سمینہ عارف الوی نے وزارت صحت کو ہدایت کی ہے کہ ہیلتھ رجسٹری میں چھاتی کے کینسر کا ڈیٹا مرتب کیا جائے تاکہ آگاہی سے 2 قدم آگے جا کر خواتین مریضوں کے علاج پر توجہ دی جا سکے. بیگم سمینہ عارف الوی نے پشاور میں خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بریسٹ ٹریننگ کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خاتون اول نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں میموگرافی کو متعارف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح کم کرنے کے لیے سکیننگ ہی واحد حل ہے. مرض جتنا جلد تشخیص ہو جائے اس کا علاج ممکن ہے. پشاور یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ ایک صحت مند عورت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس سلسلے میں ہم سب لوگ، میڈیا، NGOs اور معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کوششیں تیز کرنا ہوں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا. اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت زیارت اور لہ -3، بابوسر، کلام اور قلات میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل. اسلام آباد 11، لاہور 14، کراچی 18، پشاور 12، کوئٹہ 5، گلگت 6، مظفر آباد 9، مری 7، دیر 3، چترال 7، راولہ کوٹ 2، مالم جبہ 4، فیصل آباد 14، ملتان 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.